Yeah, I think we are good to start. Okay, so we would like to introduce you to one of our first entrepreneur, who is someone who does not need introduction by himself. Someone who has brought first of its kind into India, a brush made of bamboo. So, and his journey is quite close to all of us because most of us are from IT background. He started his journey from a technology side, and then he picked up entrepreneurship, and that's something which we wanted. One of the key reasons why we wanted Entrepreneur Katta to be part of our own sessions is that all of you should get inspired from him and should start that journey so that you can employ more people. Currently, we are being employed. We want to become an employer, and that's the thought which one of the aspects which came out from last conference was that how we can build that capabilities within our industry. We have so much of talent and how we can take it to the next level. So not holding you much, and asking Yogesh to come in and take us through the journey. Over to you, Yogesh. Yes, thank you so much. And good afternoon, everyone. So post-lunch session is always a challenging, right? Because everyone is having the vanilla ice cream taste on their mouth. Okay. This music made me emotional because that music it changed everything, right, Bhagat? Okay. So, yes, right. Yeah, sorry. Yeah. Okay. So let's start. So I always start with my session with very basic question. Even I ask the same question to the sharks. Yes, where is your last use plastic toothbrush? Yes, garbage. Yes. Let's make it more conversation. Yes, let's make more conversation because whatever I'm going to tell you is already available on the net, but let me start more and more interactive so that I can bring best out of me. So most of the answer is like in the garbage, or someone say in the ocean, someone say in the landfill, someone say I'm using that brush for the dyeing my hair. Okay. Some says like I'm using for the jewelry cleaning. So there are various ways. So sometimes I say in India, the toothbrush, any plastic toothbrush, neither created nor destroyed. It's only changed its form. Right, right. So yeah. So where is your last toothbrush? So why I'm asking these questions to you because today is something we are talking about innovation, various kind of thing. So the basic question when I heard this, these are the trigger points because since morning my lots of colleagues from Allscripts, Barclays met me and they asked me how you started your journey from direct agile coach to a bamboo business. So these points when I was in Germany, so these numbers I came to know and then the journey started you can say because plastic toothbrush we never understand because while we do brush in the morning 80% time we are not conscious, right? वो रात का हैंगओवर होता है जो भी है तो so that Sorry, yeah can you request you to go? sure So that helps. okay. So I just heard these points like plastic toothbrush is the second largest plastic waste generation after plastic bags. Okay, we never know about that. Then second thing, India is making around more than 25 crore plastic toothbrush every month. So, and this we are throwing into garbage. We are only using for 3 months, 4 months, and then it will be there for next 200 years. And this is not happening from today. It's happening since 1938. So can you imagine how much plastic we are generated and this plastic toothbrush never got recycled because there are various layers on it and there is no mechanism as of now in India or anywhere in the world where plastic toothbrush collected, PET bottles are getting collected or other polythene bags are collected but not plastic toothbrush because sometimes these are two types of plastic, nylon and plastic
rubber and plastic. So that's why it is difficult to recycle. So when these numbers I came to know, I was started worried. And the most important line, like all the toothbrush that you are using since childhood still exist on this planet. So means not only you but your parents. The first brush your parents used, it still exists on this planet. So this garbage is started getting pile up and pile up. And now last year I heard one report from United Nations, like newborn babies' blood is started found microplastics. So it's very, very dangerous. It causes cancer and lots of other diseases. So we are not aware of those kind of things, and more than aware, we are not bothered about that. And when I heard this thing, I thought, let's start exploring something new, and we come up with this bamboo toothbrush. So we are the first company in India who launched bamboo toothbrush in 2015, and commercially we started in 2016. And yes, it's exactly the same as your normal plastic toothbrush, ergonomic design, less in landfill, because 97% of this brush is plastic free. Only bristles part, which is a 0.6 grams, not even a 1 gram. 0.6 gram is still made of nylon, because there is no alternative as of now. There are some bio nylons available, but still we always say we are 97 plastic reduction from the packaging as well as the handle. And it's good for the earth, less than landfill. So this is the first product, or this is the one of the first product we launched from Bamboo India. So this is my team. She is my wife. I always explicitly say she's my wife. People get confused, like, okay. This is my team. So we are based out of Pune. So we are a first generation startup. Before starting Bamboo India, I was a full IT professional for 14 years. So I work with Barclays, Allscripts, Tech Mahindra, and you just name any telecom giant in the world, I work for them, right from the AT&T, T-Mobile, British Telecom, Vodafone, all the majors. I spent more than 5.5 years in Europe and US region, later in Singapore as well. So I was a full-time agile coach. So the world's biggest agile transformation in the Barclays Bank, I was the part of that journey. Ashwini was there with me that time in London. And yes, so this is my factory. We are 100% GMP, following GMP standards. All kind of oral care, toothbrush is an oral care product, so we have to follow all those kind of things. And the basic intention is, like, we want to change the bamboo perception. Because after spending around 14 years of IT, I was thinking I should try something else. And so I decided to come back to India from Germany, and I decided the three things I was in my mind. First, starting my own. Second, doing something with the farmers. Because in 2009 to 2013, in that time, I heard a lot of negativity about Indian farmers, that farmers committing suicides and all those things. So I thought, let's do something with the farmers with my own exposure and innovation ideas. And so we make this company, like to convert the bamboo perception from poor man's timber to wise man's timber. Why? That we will come to know. And then we started many more products. So these are few products, like bamboo toothbrush, bamboo straw, desk organizer, comb, notepad, earbuds, and so on. So right now we have around 46 SKUs with us on bambooindia.com and Amazon, and more than 22 different online platforms, and so on. So these are a few numbers. The slide is pretty old, but just let me tell you, like we started in 2016, 17 we started the offline operations. In 2018, Bamboo India is first milestone, which is how much plastic we saved. So that time we saved 1 lakh kilogram plastic waste, was our first milestone. So how we calculate, if I sold one brush today, so how much equivalent weight of the plastic toothbrush in the market, we just calculate. So we saved more than 1 lakh kilogram in 2018, and that efforts are appreciated by United Nations, and they invited me to speak in front of all the ambassadors, and where I met first time Mr. Modi. And then the journey started in 2019. Thank you. In 2019, we signed the biggest contract, like
I'm not supposed to tell the name of the company, but we signed the world's largest plastic toothbrush contract with plastic toothbrush company to provide bamboo handles to them. And then the journey started in 2021. In just next couple of years, we achieved our second milestone, that is saving 1 million kilogram plastic waste with our bamboo products. And then, yeah. And then we started with new plant in Himachal Pradesh. Now we have situated in 3 different locations in Pune, Guwahati, and Una, Himachal Pradesh. So all 3 location is fully working right now. And in terms of numbers, so this slide is pretty old. So we till now, like till March 24, we saved more than 46 lakhs kilogram of plastic waste. We satisfied more than 2.5 lakhs customers across India and more than 28 countries across the globe. And more than 77,000 farmers across India are connected to us, to selling farmers as well as the artisans in the bamboo field. So this is the glimpse of us. These are few moments like we got the appreciation from United Nations. I met Mr. Modi twice. This is one exhibition. One day I got a call. So best part of the entrepreneur's journey is you met lots of good people around you. So one day I got a call like Mr. Ratan Tata wants to talk to you. So I was so impressed, like I thought someone is prank on me, and so I said, okay, let me talk. And I heard his voice, and he told me, please come to Mumbai and see me. And then I went to Mumbai, and I had a very good meeting of around 20 minutes with a legendary Mr. Ratan Tata ji. And then the journey. So he understood like what we are doing, why I am doing this, and he offered us, if in time in future, if you have any plan, please do come to us and let us know how Tata can join this your mission. So I'm just waiting for that moment, like where we can meet him and make it's a global level. So like this, lots of newspaper, more than 100 plus newspaper, magazines, news channels, and everywhere they give us a publicity. And most of the people always say कि ये सब मीडिया बिकी हुई है, या फिर they are not covering good stories, or they are, if you only pay then and then only you will get noticed. But in our case it not happened. Till so far we have not paid any single rupees for any news channel, and not any press media, anything. But still we got a very, very good coverage across media. Gadkari ji is our very mentor since long time, because his love for bamboo is not hidden anymore. And the most iconic moment like Shark Tank. So we featured in the first tank along with the ma'am in the first season, and yeah, it was a very great experience. We are still in touch with Anupam and Ashnir, and it was a great journey because अश्नीर का जो खौफ था जो फर्स्ट सीजन में, वो हमने देखा है वहाँ पे बिकॉज एवरीवन नोज कि, बट वो जो खौफ है वो सिर्फ टीवी पे था. एक्चुअली सेट पे एवरीवन वाज वेरी वेरी हेल्पफुल, इवन नमिता मैम और पीयूष, एवरीवन वाज वेरी वेरी कोऑपरेटिव. Even after this Shark Tank, we have a very common WhatsApp group where everyone share their ideas, and they are very approachable. It is not like now they are celebrities, yes, but we are definitely they are approachable. Okay, this is one glimpse of our plan. The best part of our plan is we started with 100 brush per day in 2016, and now we have 80,000 toothbrush manufacturing per day. That is the capacity we have reached in last 8 years. For earbuds, initially we are hardly making 10,000 earbuds per day, but now we are making 1 million earbuds, bamboo earbuds per day. So that is the capacity we have developed here. And 70% of our staff is a female. So it is not purposely doing, but over the period of time, we got so much good response from the female staff, so that the entire plant is now more than 75%, 70% is led by the female employees. One more myth about sustainable product is like sustainable product is very expensive. People used to say sustainable product बहुत महंगे होते हैं, it's only for the premium class, but it is not like that.
we started the brush is 180 rupees in 2016. But over the period of time, applying lots of SOPs and supply chain management optimization, the price now is 35 rupees per toothbrush. So that is the journey we have traveled. So we don't want to make this product only for fashion or only style statement और जो होता है ना कि टिपिकली इंस्टाग्राम की पब्लिक होती है कि जस्ट शो ऑफ के लिए इट इज़ नॉट लाइक दैट वी आर रियली मेड दिस प्रोडक्ट वेरी मच अफोर्डेबल टू एवरीवन एंड जो लोग बोलते हैं कि सस्टेनेबल में बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं होता या फिर हाउ द बाम्बू कैन टर्न द इंडियन इकोनॉमी सो आई विल जस्ट टेल यू देर आर मोर देन 1,800 known bamboo product and services available in the world. We only choose one product initially which creates a market of 5,000 crores. So India में आज प्लास्टिक टूथब्रश का मार्केट 5,000 to 5,500 crores का है, in which 90, unfortunately 90% market is dominated by only 2 players. नाम लेने की जरूरत नहीं है. And those 2 players are foreign players. So unknowingly, we are making a pollution with the using plastic toothbrush, and the money which they are generating, they are going back to their own country. So we have to understand this business aspect as well. So these are few channels which we are available right now. Our 70% business is still coming from the B2B channel, where all these giants like National Geography channel, then Polycab, Yash Papers, TEDx, Capgemini, Tieto even, they are our customers since long time. Retail, we are also available on lots of stores like Adrish, Mimansa. Online, as I told you, we are available. For hotels, we are supplying more than 200 hotels across India. The best part of the hotel, like we have tie-up with Taj Group of Hotels. So wherever you go, anywhere in the world, not only India, anywhere in the world, if you go visit any Taj hotels, you will find a bamboo toothbrush which is made in Pune by Bamboo India. So this is our first hotel engagement for Taj Exotica Andaman. They are our customer since 2018, and so every year we are selling around 28,000 kits to them for their hotels. So the kits include a toothbrush, earbuds, and the container. So not only that, we are again innovation plays a very important role in our company. So our company is 100% waste free, because we are never letting a single dust particle go away from our company. Every dust particle we captured while making the brush. There are lots of dust getting generated. We collect those dust and making them into different types of products, like these barbecue pallets we are making. During COVID, we are completely shut down for 8 months. That time we are always कि हम क्या कर सकते हैं. Then we got an idea about bamboo face mask, face shield, and then we contacted Indian Postal Department and we offered them, we can provide you the face shield with made from bamboo. And they accepted and we supplied them 5,000 face masks that time, face shield, and those are for the postmen. That time only they are allowed to go to the every household, and we are very proud that we made this face shield for them. And like this, there are lots of products we are making with our things. Any questions so far? Any questions, folks? It's always good to finish Have a it on time. conversation. Yeah, please. So what's your strategy to scale? You mentioned the plastic toothbrush business is 5,000 crores and plus. So it's wider. So is it that you want to grow in toothbrush because that market is wider in the world, or is it across different products, because then that strategy changes, right? So Yeah, I got your question. So the basic Bamboo India is a sandbox for all the entrepreneurs or the people who want to enter into the bamboo field. So as I told you, like I was not having any business background.
Okay, not in my family is did any kind of business. I'm from the teacher's family. My everyone in my family is a teacher. My grandfather was a teacher. My both father and mother gracefully retired from the teacher. Even I started my career as a lecturer in CDAC Pune, and then I started into this IT professional. So I just want to give the message to everyone like business is everyone's cup of tea. Anyone can do business. The second thing, the sustainability is a very misunderstood concept in the market. People always say sustainable चीज़ें बहुत महंगी होती है, वो सिर्फ प्रीमियर लोगों के लिए होती है, only niche market. I just want to break that myth. So we started with different product initially. We started with bamboo speaker, which is our first product. But then we realized that speaker is not a must-have product. It is a good to have product. It is a mobile stand, but आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज कि अगर मुझे बाम्बू ज़्यादा पब्लिसिटी करना है या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, देन आई नीड टू मेक बाम्बू मोर ग्लैमरस. सो हाउ टू मेक एनी प्रोडक्ट ग्लैमरस? मेक एंटर इनटू द FMCG मार्केट, द प्रोडक्ट विच इज डेली कंज्यूमेबल होना चाहिए. देन वी कम अप विद द आइडिया कॉल्ड बाम्बू टूथब्रश, बिकॉज द सेम टूथब्रश आई यूज इन जर्मनी. बट वहाँ से जब मैं रिटर्न आया 2012-13 में, आई स्टार्टेड फाइंडिंग दिस ब्रश इन इंडियन मार्केट, वो अवेलेबल नहीं था. एंड जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, एंड देन वी रियलाइज कि इसको कर सकते हैं. एंड देन आई वेंट टू चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, वहाँ पे वो देखा प्रोडक्ट, वो मशीनरी यहाँ पे लेके, एंड देन वी स्टार्टेड दिस. बट देन आई रियलाइज कि मुझे लोगों को बताना है कि यार इतना बड़ा मार्केट है, हम अकेले ही प्लेयर है, प्लीज़ कम टू द लीग. इट इज़ नॉट लाइक कि ये हो नहीं सकता. तो बस दिस इज माई प्लान कि मैं लोगों को बहुत सारे इन्वाइट करता हूँ मेरे प्लान पे. सो वी नेवर अप्लाइड एनी पेटेंट सो फार, एंड वी नेवर वांट टू अप्लाई एनी पेटेंट एज वेल. वी ऑलवेज से कि अगर तुमको करना है बाम्बू टूथब्रश या कौन से भी प्रोडक्ट, प्लीज कम टू मी, आई विल टीच यू. बिकॉज ये एक बंदे से नहीं होगा. करेक्ट. So that's why my follow-up question, because the market is so huge, exactly. And then the numbers you mentioned was, very limited. How much customers we have compared to how much is consumption. Is that because we are diversifying in the products, or because there is not many people or players in the market right now? Okay, so there are various reasons for that. First, like we initially we are not a brush expert, so we are a bamboo company. So we are just trying to replace plastic with bamboo. So wherever we see bamboo, we just try to replace. For example, my comb. Okay, I just want to make everyone we start using bamboo comb, so that at least the 5 grams of plastic is removed from their pocket. So that is my intention. So that's why we are experimenting with the various products. Regarding one typical product, still we have a huge resistance in the market from these distributors. So it is not that easy to make your product accessible to everyone. I'm trying to DMart, I'm trying to Reliance, और it is not that easy. इस पब्लिक को लगता है कि आप प्रोडक्ट लेके जाओ, रिलायंस खड़ा है आपके लिए, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उनके पीछे जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल जो ब्रश मेकिंग कंपनी है, दे डोंट वांट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट कम टू द मार्केट. तो ये प्रॉब्लम होता ही है. सो इट विल टेक टाइम. जैसे मैंने कहा कि वी स्टार्टेड विद 100 ब्रश पर डे, नाउ वी आर मेकिंग 80,000 ब्रश पर डे. So that is the capacity we have developed. So we invested in the technology, we are invested into various products, and now if someone wants to make this product, they can easily copy. Because when I started, technology was not available in India. Now technology is available in India. I will give you one more example. The first product which we make, that is a bamboo speaker, which is a very simple product, like a bamboo cut from 45-degree angle, 1 feet long, and the mobile holder. That product also was not there in the market in 2015-16. I made this product, I coated it with nice paint, lacquer, transparent paint, and I make this product, and it was getting popular in corporate gifting and all. जब हमने बनाया था तो हम अकेले ही थे 2016 में. अगर आप आज जाके गूगल करते हो बाम्बू स्पीकर्स, you will find minimum 200 suppliers, 200 artisans are making these products. सिर्फ मैंने ही, मतलब बाम्बू इंडिया ने, वी सोल्ड मोर देन 2.5 lakhs बाम्बू स्पीकर्स, विच इज 200 रुपीज़ और 300 रुपीज़ इन द प्राइस. सो यू जस्ट इमेजिन कि एक सिंगल प्रोडक्ट हमने जो बनाया, लोगों ने कॉपी करके आज अलग लेवल पे लेके गए.
राइट. सो एट द एंड ऑफ डे अगर मैं प्लास्टिक सेव करता हूँ या कल जाके कोई और करता है, डजेंट मैटर. मार्केट बहुत बड़ा है. लोग बोलते कि अरे ये आईपी है, आप इसको पेटेंट करो. मैं बोलता यार पेटेंट क्यों करना है, मार्केट 5000 करोड़ का है, मेरा टर्न और आज की तारीख में सिर्फ 6 करोड़ है. राइट. तो मेरे जैसे और 200 कंपनी आ सकती है. एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी. व्हेन आई मेट हिम फर्स्ट टाइम, so we met in the conference that United Nations conducted, and he saw he visited every stall, and then we got a time to meet him. So I explained him everything like what we are doing. So he said कि एक बाम्बू इंडिया नहीं, तुम ऐसा करो कि 100 बाम्बू इंडिया कैसे खड़ी हो जाए. It is your responsibility. So that's why I'm taking that effort, so that at least more and more people come, start using that, the traction will increase, and then the big player will come. So that is basic agenda. Hope I answered your question. Yeah, thank you. Yes. Hello, sir. First of all, I just want to say that you are doing a great work, and I have never seen an entrepreneur with such humbleness and who doesn't care about the other entrepreneurs or other competitors, and who doesn't want to do a patent which he can easily do it. So I really admire that. And as you were talking about the perception about the bamboo and other difficulties, so if you have to pinpoint one of the largest challenge which you faced in your entrepreneurial journey, what it will be and how you overcame it. Okay, the challenge is different. So as an entrepreneur, you wake up with the challenge. so it is like no, miss, I'm just saying. So I never say it's a challenge or failure, because it is part of your journey. So entrepreneurship is a journey. It is not a destination, honestly. So you just enjoy the journey. For someone say it's a failure, someone says unsuccessful, but sometimes that asset will helpful for other things. So I will just give you one example. So we got one order from one of the foreign company about replaceable head, bamboo toothbrush with replaceable head. So we work with them very closely. We spent more than 5.5 months working on various models and all. And then when the product was about to ready and everything, and the COVID come. And that company, after that, the companies disappear. They never contacted me. So I spent more than 5 months, and I was completely shocked. यार कम से कम मेरे 4-5 लाख खर्च हुए, टाइम खर्च हुआ है, तो क्या तो so that is a failure one kind of, क्योंकि वो convert नहीं हुआ business में. And then last month we got an opportunity where one company, razor company, came to us, and they said we want to make a razor, bamboo handle and replaceable head. So we use exactly the same technology, and we got the order of 5 lakhs razor per month from next month onwards. so it is all about. So if I say यार मेरा failure हुआ, मेरा 5 लाख खर्चा गया, तो वो नहीं होता. बट आई ऑलरेडी डिड द इन्वेस्टमेंट, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता. जैसे आपने कहा कि पेटेंट तो कोई भी छीन सकता है. जस्ट ट्विक करो, 10% 15% एंगल चेंज करो, प्रोडक्ट विल बी न्यू. बट द जर्नी विच आई ट्रैवल्ड सो फार, it is no one can take out of me. So that is what the beauty of the entrepreneurship, I say. Okay, so वहाँ से पीछे से वो दिखा रहे हैं मुझे numbers. ठीक है, I will just give. So why bamboo? So there are lots of questions like there are so many plants around the world, but why you choose bamboo? So basic thing, first, India is world's second largest bamboo growing country. We have more than 136 species in India. Okay, and bamboo is the fastest growing grass in the world. It is not a tree. So by cutting bamboo, you are not making any deforestation. That is very, very basic thing. So लोग एक क्वेश्चन आता है हमेशा, अगर आप सब लोग बाम्बू टूथब्रश यूज करने लगे तो जंगल खत्म हो जाएगा. नहीं होगा. आई विल जस्ट टेल यू वेरी बेसिक. हमको 1 लाख ब्रश पर डे बनाने के लिए वी ओनली नीड 1.5 truck bamboo per day. I will just give you. So means in a year we roughly consume around 400 trucks of bamboo. Okay, and I will tell you the other number. इंडिया में एक स्टेट है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में 28 डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें भी बहुत सारे तालुकाज है, राइट. तो उसमें से एक तालुका है वेल्ले, जो यहाँ से 60 किलोमीटर से, विच इज़ द स्मॉलेस्ट तालुका इन इंडिया, नॉट महाराष्ट्र, स्मॉलेस्ट तालुका इन इंडिया. वो सिर्फ वेल्ले गांव में, मतलब वो तालुका में
every year 5,000 trucks bamboo निकाल के बाहर बेचते हैं. So can you imagine how much bamboo we have? I am not touched the northeast. Northeast तो अलग ही story है. It's a heaven of bamboo, right? तो that's why I'm saying कि bamboo का तो हमारे पास कोई कमी नहीं है. We have 136 species. It grows 1.5 feet per day during monsoon. So bamboo एक बार हम लगाते हैं तो 4th year के बाद उसका harvesting शुरू होता है, next 50 years तक चलता है. Because bamboo always never comes alone. It comes in a group. तो आज एक बाम्बू कट किया तो 2 नए शूट आ जाएंगे, वो काटोगे तो और 2 नए आ जाएंगे. तो इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट. सो अगर हमने एक आदमी अगर 80 years जीता है नॉर्मली, तो आई जस्ट क्वान्टिफाइंग द नंबर्स, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर हम 80 साल जीते हैं तो हम डेली ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. अगर हम सिर्फ 20 बाम्बू के कल्म्स लगाते हैं, 20 बाम्बूस अगर हम ग्रो करते हैं, तो हम हमारी लाइफ का पूरा ऑक्सीजन वापस कर देंगे अर्थ को. सो कैन यू इमेजिन? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ बाम्बू. सो इफ यू जस्ट प्लांट 20 बाम्बूस और 30 बाम्बूस इन अ होल लाइफ, तो आपको जब आप मरोगे तो आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं रहेगा कि मैंने ऑक्सीजन लिया. ओके, द नेक्स्ट पार्ट, लाइक एज आई टोल्ड यू, इस 4th years टाइम वो रेडी हो जाता है. एंड अगर हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बाम्बू ग्रोइंग कंट्री, आवर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड बाम्बू प्रोडक्ट्स ओनली 4%. वी ओनली एक्सपोर्ट 4% ऑफ ग्लोबल बाम्बू प्रोडक्ट्स. मीन्स हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास सब है, बट लोगों को पता ही नहीं है ये सब चीज़ें होती है. आप आज भी लोगों, जब व्हेन आई वाज अबाउट टू स्टार्ट माय स्टार्टअप, 99% ऑफ ऑल माय कलीग्स फ्रेंड दे आर सेइंग कि यार ये करेगा तो ड्रोन में कुछ करेगा, या आईटी में कुछ करेगा, या ऐप बनाएगा. सबको ये लगता था. लेकिन व्हेन आई इंट्रोड्यूस बाम्बू इंडिया तो वो सरप्राइज हो गए, ये क्या हो गया. ठीक है, तो उससे मुझे एक शेर याद आता है कि जब जिंदगी ने उंगली करना बंद कर दिया, मैं बहुत खुश हो गया. जब जिंदगी ने उंगली करना बंद कर दिया, मैं बहुत खुश हो गया. मुझे क्या पता जिंदगी बाम्बू लेने गई है. Yogesh ji, I know there are a couple of more slides. Sorry to interrupt you, Yes, but yes. I think there are last 5 minutes. Is it good if you are going to take few so- questions? So yeah, that's the last slide only. So I'm also good at timekeeping. Okay. So these are the 4 pillars we are helping India to grow. We are making Swachh Bharat. We are helping Swachh Bharat mission. We are helping Make in India mission. We are helping Atmanirbhar Bharat and the Kushal India, Skill India. So providing a new skills to India. And this is the last slide. We are helping also United Nations Sustainable Goal with lots of things. So this is my team. We are working from Pune. So this is about me and this is about my mission, Bamboo India. We have also showcased our products outside. So if you want to see, please visit and participate in this mission. Thank you so much. So before I take questions from it, I think just 1 minute left. But I have one question, being a coach myself. Yes. And you have had that journey. So how agility has helped you throughout your journey? Because that's something which is always on the mind of every person here. They have come in a Scrum gathering and they may be thinking, hey, how has agility helped you to made those decisions or challenges, go through that challenge? How about that? Sir? Yeah, so definitely being an agile coach for many years. So I'm here as a devil's advocate, not a devil advocate, but yes, we believe in agile principles since long time. So all the agile practices we are following, like daily 8 o'clock, all the staffs comes together and discuss about what is happening. So that is Scrum, daily Scrum we are doing. After every successful release of a project, we do the retrospective meeting where we always discuss about the 3 questions, basic, what went well, what is going, the impediments and all those things. We always discuss that. And the planning, we never go in a big orders. We always, even though we have a things, we always divide into small things and then try to deliver those small things. So that's why I always say ki agile is not a last goal, it's a way of life. So not only about agility in my business, but wherever, so Ashwini is here, so we discussed when I built my farmhouse around 10 years back.
I use that agile principle and I showcase that. So my story that time, 10 years back, was selected in Bangkok Agile in 2014, and I was one of the participants from India traveled to Bangkok to showcase that. So I always use that agile methodology in various ways possible, and business definitely it is helping me a lot. Thanks a lot. Any quick last question anyone has, or we are good? Yeah, there it is. Yes. Let's say if someone wants to start this, what would be the starting capital? Uh, Okay, very good question. Okay, so this is a normal question: how much funding required to start a business, or how much funding I need to start my business? So let me tell you, when I started very conservative. I invested only 6,500 rupees for a machine called as cross-cutting machine. The machine name is, and I always try to get the thing outsourced. First 3 years, we don't have a laser machine. We don't have a paint booth. Even today, we don't have a paint booth. And then, as and time required, we buy those machines. So we started with 6,500 rupees single machine, cross-cutting machine. And today, we have 2.8 crore machinery in my factory. So that is the journey. So business really don't require money to start. It is only required an idea and the execution plan. I started selling my products to my colleagues in Barclays Bank or Allscripts or Tech Mahindra. And from there, I started getting inquiries, and then my home is my first business place, where in the guest room we stored all packaging material and all those things. And slowly we improve ourselves. Then we took a factory, the place, and then we build our main business. But to start a business, you really don't require a huge money. If you want to, but you need to think yourself how big you want to do. Go steady and slowly, things will be eventually going big if you consistent. There you go. There is another last question from, and I don't want to miss this up. Okay, sorry to disappoint you, Rahul. This is not a question. I just want to add my point, knowing Yogesh for such a long time. Because this is entrepreneur katta, there are all kind of entrepreneurs experimenting in industry we see around us. Some are exploiting the world's resources. Some are exploiting you, whether you know it or you don't know it. That's a different case. We know social media apps. Here's a story of an entrepreneur who is not exploiting, who is helping develop a positive ecosystem. So I just wanted to take this moment in the last to give a special kudos to him for the noble cause he's helping with. And what he has forgot to highlight is, not only from the consumer point of view, the kind of product they're producing, the kind of employees he is involved in, they're kind of the tribal guys with a very poor background, and he has been providing very good employment opportunities for those people who never would have thought of that kind of employment opportunities. So very special thanks and kudos to Yogesh for the fabulous job he's doing. Thanks a lot. So I would request Sushil to felicitate Yogesh here. A plant from us. Thank you so Ugao. much. Thanks a lot. So, as we move to the next conversation, we would like to call upon Dhiren, who would introduce our next speaker. Hello. How was the session till now? Because he's getting ready, Dada Saheb, right? And actually, I'm not going to give his introduction, because if I will give an introduction, that would be a spoiler. I would like him to give his introduction. Such an impactful story it is, and the introduction it is. I'm going to only quickly say Dada Saheb is a founder of Do Graphics and CEO of Template.io. That is only the thing which I'm going to say. But his story has to be heard from him. That's the reason we all are here, right? And Dada Saheb, if you're ready, I'm not going to take any time, and I'm going to call you upon on the stage. Let's hear it out from Dada Saheb Bhagat. Dada Saheb, please. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दादा साहब भगत और मैं हूँ डिज़ाइन टेम्पलेट का फाउंडर। डिज़ाइन टेम्पलेट हम लोग एक डिज़ाइन मार्केट प्लेस है। तो अभी क्या है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डेवलपर्स और
एम्प्लॉयज़ इंडिया में हैं, लेकिन हम फिर भी 95% बाहर के कंट्रीज पे डिपेंड है इन डिज़ाइन और डिज़ाइन इंडस्ट्री में। सेम थिंग बाकी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हम बाहर के कंट्रीज़ के यूज़ करते हैं। सो इसी वे में हम लोग सिर्फ डिज़ाइन इंडस्ट्री में हम लोग अपना एक पहले इकोसिस्टम लाना चाहते हैं। तो अभी हम लोग ये मार्केट प्लेस बना रहे हैं और उसके बाद हम लोग बना रहे हैं AI बेस्ड डिज़ाइन प्लेटफॉर्म। लेकिन ये स्टोरी थी कि नॉर्मल ऐसे शुरू नहीं हुए थे कि मैं हूँ 10th पास, तो एजुकेशन मेरा 10th पास हूँ। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे पुणे में आने का मौका मिला कि कहीं पे जॉब करूँ। तो पहला इंटरेक्शन हुआ मेरा इन्फोसिस में, मैं ऑफिस बॉय था। तो वहाँ पे देखा कि एक टेक वाला दुनिया है, लोग कंप्यूटर पे बैठ के पैसा कमा रहे हैं, तो मुझे इसमें तो कुछ करना है। तो वहाँ से बात कर रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, लेकिन मेरा एजुकेशन वो नहीं। तो वो बोले कि डिज़ाइन एक ऐसी इंडस्ट्री है वहाँ पे तुम कुछ कर सकते हो। तो तब रियलाइज हुआ कि मैं बचपन से ड्राइंग में बहुत अच्छा था, क्योंकि मतलब स्कूल में बहुत ड्राइंग पेंटिंग करता था। तो पार्ट टाइम इन्फोसिस में मैं फेज़ 2 में हिंजवड़ी का जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे रात को काम करता था, दिन में कॉलेज करता था। तो ऐसा चला, तो 1 साल में मुझे जॉब मिल गया। तो मेरा ऐसा था कि कंटिन्यू लर्निंग करता था, तो बहुत अच्छा ग्रोथ डिज़ाइन इंडस्ट्री में किया। जब मैं हैदराबाद में गया तो 1999 में देखा कि यहाँ टेक्नोलॉजी सिखाया जाता है, सी प्रोग्रामिंग, वो सब चीज़ें। तो मैंने वहाँ पे प्रोग्रामिंग वगैरह सीख लिया। और ऐसा हो कि जो हम लोग काम करते थे डिज़ाइन फील्ड में, तो हम लोग एडोब के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, या 3D वाला चीज़ तो माया वो सब चीज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता था, बहुत सारी रिपीटेटिव वर्क होते थे। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे प्लगइन्स बनाते थे कि जो काम हमारा 8-10 दिन का जाता है, तो रिपीटिव कोई भी बंदा करके आधे घंटे में 1-2 घंटे में कैसा ख़त्म कर सकता है। तो ऐसे ही शुरुआत हुआ। तो इस वजह से लेकिन मुझे जो एज अ बैकग्राउंड में एक फार्मर फैमिली से हूँ, तो ये बिजनेस कुछ का आइडिया नहीं था। तो ऐसा हुआ था कि 2015 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था कि 8 दिन मुझे कुछ करना नहीं था, कि डॉक्टर बोला कि तुझे बेड रेस्ट करना है। तब मुझे जो आता था, जस्ट मैं टेम्पलेट्स बनाता, वो सब करता था। ऑनलाइन सेल करने के लिए 8 दिन जस्ट बनाया और सेल करने के लिए क्या। तब उसके बाद ऐसा हुआ 2-3 महीने के बाद जो मेरी सैलरी थी उससे बहुत सारा इनकम ज़्यादा मुझे आने लगा कि इससे जो ऑनलाइन आ रहा था। तो मैंने बोला चलो बिजनेस करके देखते हैं, क्योंकि अभी एम्प्लॉयमेंट का थोड़ा कम करते तो खुद का पैसा कमाते, थोड़ा बिजनेस करते। तो एक फ्रीलांसर बन गया और बहुत सारे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कस्टमर्स बन गए। मतलब ऑनलाइन बहुत अच्छा प्रेजेंस मैं कर रहा था। तो मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो हमारे लेकिन कस्टमर थे चाइना से, वंडर से, एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत वर्ल्ड वाइड। फिर भी हम लोग ट्रांसलेट करके बात करते थे और बहुत सारे ऐसे कस्टमर बन गए थे। तो इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि जब हम लोग डिस्कस करते थे, कई कस्टमर थे, उसको कुछ डिज़ाइन बन के दिया, वीडियो बना के दिया, तो उसमें कम्युनिकेशन गैप आता था कि हमें ये चेंजेस चाहिए। तो हमारा उनसे कुछ मेल आता है या बाकी चीज़ आते, तो हमारा डिज़ाइनर उससे बाद फिर से चेंज करे, वो सब बहुत सारे चेंजेस आते थे। तो इसके ऊपर आइडिया कि क्यों ना हमारा खुद कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। और मैंने रिसर्च किया तो इंडिया का कोई भी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर नहीं है, या है तो बहुत सारे छोटे नॉर्मल लेवल पे। क्यों ना हमारा खुद का डिज़ाइन सॉफ्टवेयर बनाया जाए। और इसमें लॉकडाउन आ गया था और हमारा पुणे का ऑफिस बंद हुआ था। तो क्योंकि फाइनेंशियल वो सिचुएशन था, तो मैं गांव चला गया था, यहाँ का पूरा ऑफिस बंद किया था। तब बहुत सारा ऐसा होता कि टेक वाला चीज़ बहुत बढ़ गया था, मतलब डेवलपर की सैलरीज वगैरह बढ़ गई थी या सब कुछ। तो मैंने गांव वाले जो बच्चे थे उनको जो डिज़ाइनर बनाया, गांव के बच्चे पकड़ के। और जो इंटरनेट नहीं था गांव में, तो एक पहाड़ पे काऊ शेड बनाया था, गाय वाय बांधते, तो वहाँ पे हम लोग काम करते थे। तो लगभग 7-8 लोग, रात को 24 घंटे वहाँ पे काम करना है, रात को वही सोना है, सुबह तालाब में नहाना है। तो 1 साल में हमारा पूरा सॉफ्टवेयर बनाया था और वो लॉन्च भी किया था। उस टाइम पे लगभग बहुत सारे मीडिया ने हमें कवर किया, या वो मोदी जी ने बोला था कि मेक इन इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो लेकिन क्या है कि एज अ बैकग्राउंड ये सब स्टार्टअप पता नहीं या सब कुछ पता नहीं, तो इतना स्केल नहीं कर पाए थे। कि जो बनाया था अलग टेक्नोलॉजी, PHP में बनाया था, आई थिंक यहाँ पे पूरे टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो PHP बनाया था, ये स्केलेबल नहीं था। तो यूज़र आते थे तो लैग करता था, फंड्स नहीं थे। तो उसके बाद सोचा चलो पिवट करते, हमारा जो कोर है वो है डिज़ाइंस। तो यहाँ पे एक है कि अभी करंट क्या है कि जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे प्रीमियम डिज़ाइन मार्केट प्लेस नहीं है, तो नॉर्मल डिज़ाइन। तो हमने क्या किया कि
जो करंट AI वगैरह आ रहे हैं, तो उसके साथ क्यों ना हमारा मार्केट प्लेस बनाया जाए जो AI का लेके और हमारे जो करंट पुराने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं उसको कंपाइल करके स्पीड अप से जो डिज़ाइन एसेट बनाया जाए और जो हमारा पुराना वाला सॉफ्टवेयर उसको बाद में हम लोग लॉन्च करें। तो इसको लॉन्च किया 2022 में, थोड़ा पिवट करके हमारा प्रीमियम डिज़ाइन का मार्केट प्लेस लॉन्च किया। तो हमारे वर्ल्ड वाइड अभी लगभग 95 कंट्रीज़ में कस्टमर है ग्लोबली। तो और अच्छा खासा रेवेन्यू भी कमाते हैं। तो लेकिन इसके बाद हुआ कि इंस्टाग्राम पे मुझे लास्ट ईयर मैसेज आया था कि आपका बहुत कंपनी अच्छा करे, शार्क टैंक पे आ जाओ। और मुझे पहले बिलीव नहीं था कि शार्क टैंक में मुझे ले सकते, क्योंकि इन्वेस्टर देखते कि तुम्हारा एजुकेशन क्या है, तुम्हारे बाकी के पार्टनर्स क्या करते हैं, वो सब चीज़ें। तब मतलब ठीक है अप्लाई कर दो। तो वहाँ पे गया और शार्क टैंक जब पिच कर रहा था मैं, तो अभी जैसे बात करना मुझे इतना आता नहीं है, मतलब पब्लिक स्पीकिंग बहुत बेकार है मेरा। तो वहाँ पे 10 मिनट तक फ्रीज हो गया मैं। तो राधिका मैम ने मुझे पानी वानी ला के दिया। पीयूष बोला तुम बाकी चीज़ें छोड़ दो, जो पिच है मत बोलो, तुम्हारा बिजनेस समझाओ चलो। तो बिजनेस समझाया और अमन जी में बिलीव किया और उन्होंने फंडिंग भी दे दी। लेकिन वहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया। मैंने जब वो होता है 3 दिन का शूट होता है, लगभग वहाँ पे 18 एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, मतलब 18 स्टार्टअप होते हैं, बहुत सारे फाउंडर्स होते हैं। तब मैंने सबके साथ बात किया। मैं तो बहुत सबको पूछता हूँ मैं क्या करता हूँ, तो कैसे वो सब चीज़ें। तब वहाँ पे मुझे पता लगा कि अब स्केल चीज़ बहुत बड़ी है। तो जैसे शार्क टैंक से वापस आ गया तो मैंने CTO हायर किया और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट से, अजूर से बहुत सारा क्रेडिट वगैरह ले लिया। तो पैसे की ज़रूरत की वजह बाकी सब टीम कैसे बना सकते हैं। तो अभी मैंने ये किया कि मैं जो आज कर रहा हूँ मुझे कल नहीं करना है, आज मुझे डेडिकेटेड पर्सन बनाना है। तो आज मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ स्केल कर रहा हूँ और आगे का मार्केट कैसे ये करते हैं पूरा टीम ऐसे बिल्ड किया हुआ है। तो अभी हम लोग जो बना रहे हैं मेनली AI बेस्ड डिज़ाइन के ऊपर काम करें। मार्केट प्लेस अभी सेट हो गया है पूरा, कस्टमर वगैरह। तो हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि कोई भी जाके जस्ट टाइप करे तो उसको उसका मूवी का ट्रेलर से लेके उसका पर्सनल वेडिंग इनविटेशन से लेके कुछ भी कमर्शियल एडवर्टाइजिंग भी तैयार होना चाहिए। तो ये हमारा गोल है। और इसके थ्रू हम लोग जैसे इंडिया में बहुत सारे ऑथर्स बना रहे हैं, तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, क्योंकि डिज़ाइनर्स बहुत है, सब कुछ है, लेकिन उनको ये वाला मार्केट पता नहीं। तो हमारे मार्केट प्लेस के लिए भी वो एसेट चाहिए और प्लेटफॉर्म के लिए एसेट चाहिए। तो हम लोग मेक इन इंडिया और सर्व टू द पूरे ग्लोबल को सर्व करना चाहते हैं। तो ये हमारा अभी तक का स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है। बहुत रैपिड फायर हो गया है कि दादा ने पूरा जर्नी इतना फास्ट बताया है। ये सेटअप इसका ऐसा होने वाला है कि वी वांट टू कीप इट वेरी इंटरेक्टिव एंड ही वांट्स टू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू। So if you had understood very quickly his journey, right from not knowing technology, not knowing business, not knowing requirements, he's today setting up the AI platform, and we all know what we are doing from last 5 years, decade, right? Still, yes, yeah. तो हिंदी में ही बोलना चाहिए, करेक्ट। तो हमें पता है कि हमारे जो माइग्रेशंस प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो मेरे को बताना नहीं है पर कितने सालों से चल ही रहे, राइट? टेक्नोलॉजी स्टैक, वेयर वी आर सीइंग अ जर्नी इन लास्ट couple of years from where to where it is. तो I would like आप सब लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, you know. He has spoken about a very good point कि कम्युनिकेशन इंग्लिश में स्ट्रगल है, फिर भी 95 कंट्रीज में कस्टमर्स है। और हमारे यहाँ पे 2 रोल्स के बीच में क्या होता है पता है आप सबको, है ना? डेव, ऑप्स, सेक, बिज, कैसा बहुत सारा मुश्किल हो जाता है। तो लाइक यू टू प्लीज आस्क हिम क्वेश्चन, check how he's working with his team. Agility is a truly agile thing what we are seeing, right? So open for questions, and then we will also have some rapid fire with him. So hi, I just wanted to ask, like, you know, you said you're hiring CTO and you're trying to build team. Yeah. अच्छा, तो आपको मतलब कभी कभार कुछ लोगों से कॉम्प्लेक्स मिलता होगा, राइट? हाँ। कि यार ये बहुत टेकी है, ये क्या बोल रहा है मुझे समझ ही नहीं रहा, राइट? So how you deal with this? Same सारे एरिया में, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, राइट, जिस कंपनीज को आप पेश करते हो वो अलग, लाइक EBITDA, EPS, व्हाटएवर दे आर टेलिंग ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज,
एक तो आपको पता नहीं होगा, या तो फिर आप जानते नहीं होंगे इसका इंग्लिश वर्ड क्या है. तो हाउ डू यू डील विद सच क्वेश्चंस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज? राइट. तो इस जर्नी में क्या हुआ कि मेरा जो लाइफ जर्नी था इसमें जब मैं डिज़ाइनर बन गया था, तो जो हॉटस्टार जो ऐप देख रहे हैं उसका मैं क्रिएटिव हेड था, जो सब लॉन्च किया उसका मार्केटिंग कैंपेन वो था, और जितने भी स्टार के चैनल थे उसका जो क्रिएटिव बनता था उसमें भी बहुत सारा क्रिएटिव मेरा था, तो वो वाला पार्ट देखता. तो मार्केटिंग में मैं बहुत अच्छा था, PR क्या होता है वो सब चीज़ें, और वैसा था कि टेक्नोलॉजी भी मैं उसके साथ कर रहा था. तो जो डिज़ाइन बना रहे थे वो सब ये हो गए, और मार्केटिंग में क्या चाहिए वो भी पता था. जब मैं जैसे यहाँ से वापस आ गया, मैं शार्क टैंक का हो गया, मुझे पता था मुझे फंडिंग मिल रहा है, तो पहले भी बहुत सारे CTO से बात कर रहा था. इवन US में ऐसे जिसका 2 मिलियन का पैकेज है वो भी मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार थे कि मुझे आपके साथ काम करें, क्योंकि मेक इन इंडिया के लिए आप बहुत बड़ा चीज़ करें. मुझे बेसिक टेक्नोलॉजी पता था, और मुझे पता था कि किस इंसान को चूज़ करना है. तो मुझे टेक्नोलॉजी पता है, मार्केटिंग पता है, तो और मैं कुछ कंसल्टेंट को भी लेके आता था कि हाँ यार तू थोड़ा वेरीफाई कर ले ये सही बंदा है नहीं है. तो इस वजह से मैं पूरा टीम बिल्ड करते जा रहा हूँ, और अभी मेरे CTO हो गया, वो सब टीम, और मार्केटिंग में भी और एक अच्छा खासा बंदा लेके आ रहा हूँ, तो सेम वेरिफिकेशन मैं इन कर रहा हूँ उसको. असफलता तो जीवन का भाग है, तो आपको कौन सी असफलता में से सबसे बड़ी सीख मिली? राइट. 2020 में हमारा जब डू ग्राफिक्स लॉन्च हुआ था, तब लगभग मराठी का ऐसा कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं था कि जिन्होंने हमारी स्टोरी कवर की थी. तो ऐसा हो गया कि मैं सेलिब्रिटी जैसा हो गया. लेकिन जब मैं पुणे में ऑफिस चालू किया तो मेरे पास उस टाइम पे क्रूज कार थी, मैक वगैरह सिस्टम थे, तो वो मैं सोचता था कि मैं क्रूज बेचूंगा तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मेरे कंप्यूटर्स बेचूंगा तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा. लेकिन उसके बाद जब पिवट लिया तब हाँ ये है, तो ये कंटिन्यू चालू होने वाला है. लेकिन ऐसा भी कोई चीज़ हमें पता होना कि कब हमें चेंज करना चाहिए, कब कौन सी चीज़ छोड़ना चाहिए. तो क्या होता है, बहुत सारे फाउंडर्स अपने कंपनी में ये मेरी आइडिया मतलब ये है, तो उसमें अटक जाते हैं. तो ये मेरा है कि चेंज करना बहुत ये है. हेलो दादा साहब. हाय. हम 2 लोगों को बहुत इज्जत देते हैं, एक है दादा, दूसरा है साहिब, राइट? कहीं पे भी. कंबाइन. और आप दोनों आप कॉम्बिनेशन हो. ओके, बट होता ये है जब हम लोग आते हैं इंडस्ट्री में, हम लोग कुछ ट्राई करते हैं, सक्सेस पाते हैं, राइट? जब आप बाहर जाते हो और 10 सक्सेसफुल लोगों के साथ आप बैठे हो, राइट, 10 लोग बहुत अच्छा बात कर सकते हैं, ओरेटर्स है, और आप हिंदी में बात करते हो. ये कॉम्प्लेक्स आपको कहीं पे रोकता है क्या कि यार मैं आगे नहीं बढ़ सकता? ऐसा कहीं होता है क्या? अगर नहीं रोकता है तो व्हाट इज द हिंट कि आप हमें दे सकते हो कि गो अहेड विथ व्हाट एवर यू हैव? कुछ फियर मत रखो. पहले क्या होता था कि मैं मतलब ऐसे लोगों के साथ मतलब बात करने के लिए डरता था, और उनके साथ क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता था लगता था. लेकिन उनके साथ जब अभी जैसा मेरा नेटवर्क अच्छा हुआ है, मतलब जिनके बिलियंस ऑफ डॉलर के स्टार्टअप है उनके साथ भी मैं अच्छा बैठता हूँ, वो भी मुझे बुलाते हैं, ये करता. अभी मुझे बिलीव हो गया कि उनके पास जो चीज़ है मेरे पास भी है, सिर्फ एक चीज़ कमी कि मैं उनका रिस्क वो लेते, कैलकुलेटेड लेते, तो वो सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, तो बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है. या थोड़ा मेरे पास नॉलेज कम है तो मैं ज़्यादा इफर्ट लगा दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हमें वो वाला इन्वायरमेंट चाहिए, वो वाला थॉट प्रोसेस चाहिए. दादा साहब, मेरा से एक क्वेश्चन है. आपने बताया कि आपकी जर्नी में आपने बच्चों को पढ़ाया, गांव में लोगों को सिखाया. सो आपने सिखाया कैसे, मतलब उन्हें कैसे सिखाया? क्योंकि आप टेक्नोलॉजी स्टैक है और उनका जो टेक्नोलॉजी स्टैक आपने बहुत बेसिक से सिखाया होगा. सो वो जर्नी जानना बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड सेकेंडली कि आप डेलीगेट कैसे कर रहे हो, मतलब आपने एक स्टैक में एक्सपर्टी किया, फिर आप उसी में नहीं अटक के दूसरी जगह पे आपने शिफ्ट किया. सो वो जर्नी आप बताएंगे तो हेल्पफुल होगा. राइट. एक्चुअली जो स्क्रैच से स्टार्ट हुआ था, जब मेरे पास डिज़ाइनर्स नहीं, एक्चुअली डिज़ाइन ऐसा स्किल है कि कोई भी जल्दी सीख सकता है या ज़्यादा सीखने वाला चाहिए. तो डिज़ाइनर्स मैंने गांव में जो क्योंकि मेरा भी कोई
एजुकेशन वाइज कुछ नहीं था, तो मैंने डिज़ाइन ऐसा ही सीखा हुआ है। तो इसी वे से मैंने सोचा कि जो गांव में अच्छे कैसे उनको ध्यान दे सकते या जिनके अंदर पोटेंशियल है, तो उनको मैंने डिज़ाइन सिखा दिया। और टेक वाला चीज़ है कि उसके लिए थोड़ा बहुत सारे टेक डिज़ाइन नहीं, एजुकेशन चाहिए। तो उसके लिए मैंने बाहर से लोग फ्रीलांसर, इवन 2020 में 19 में मैं वियतनाम से टेक्नोलॉजी बना रहा था कि वहाँ से थोड़ा सस्ता में बन जाए। तो ये सिर्फ डिज़ाइनर सिखाए थे, टेक्नोलॉजी मैंने नहीं सिखाया, उनसे किसी और से मैं एडप्ट करा था। सो मे बी उसके ऊपर ही है, मैं वही पूछने वाली थी कि आपने विलेज में गए, वहाँ पे बच्चों को सिखाया, वो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं आज के दिन में? Yes. अगर कर रहे हैं, जब आप न्यू हायर करते हो तो आप यू लुक आउट फॉर कंटिन्यूस लर्निंग, यू मेंशन दैट वर्ड। आपने सीखा खुद से, बीइंग एन ऑफिस बॉय टू नाउ हेडिंग अ कंपनी, जर्नी इज लर्निंग, आप सीखते रहे। तो आप वो देखते हो जब किसी को हायर करते हो, या स्किल सेट देखते हो कि अच्छा मुझे सीटीओ चाहिए, जिसको सीटीओ का मालूम है वो आ जाए, वो सीखे नहीं सीखे फर्क नहीं पड़ता आगे? तो क्या देखते हो आप जब हायर करते हो? ये सब डिपेंड ऑन कौन से पोजीशन के लिए हायर करें या कौन सा डिपार्टमेंट है। तो एक तो लर्निंग वाला चीज़ है, कितना डेडिकेटेड बंदा है, दूसरा है कि उसको क्या आता है, और अगर टेक वाला चीज़ है या बाकी सब, तो उसमें एजुकेशन दिखाया। डिज़ाइन में मैं कुछ भी नहीं देखता, उसका पोर्टफोलियो देखता हूँ, अगर अच्छा है तो उसको एक हायर कर देते हैं। तो डिपेंड ऑन पोजीशन कौन सा है उसका। थैंक यू। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरा 2 क्वेश्चन है। एक, आपके कंपनी के लिए आपका ड्रीम क्या है, सपना क्या है, सबसे बड़ा सपना क्या है? और दूसरा, आप अपने पर्सनल टाइम में टाइम पास कैसे करते हो, या हॉबीज़ या मस्ती कैसे करते हो? राइट। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी दुनिया में दो मार्केट है डिज़ाइन के। एक तो है हाई एंड डिज़ाइन, जो एडोब का मार्केट है या हाई एंड सॉफ्टवेयर है। दूसरा है कैनवा वाला चीज़, कोई भी सिंपल डिज़ाइन बनते हैं, सिंपल चीज़। तो हम लोग उसके मिडल वाला मार्केट बना रहे हैं, जो कोई भी नॉर्मल बंदा भी हाई एंड डिज़ाइन बना सके, लाइक एडोब, और उससे भी हाई एंड। तो हम लोग ऐसा अपना एक दुनिया में इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं कि इंडिया से एक कंपनी ग्लोबली इस वे से इतना बड़ा इम्पैक्ट करे। ये पैसे वाइज नहीं होगा या वैल्यू वाइज नहीं, कितने लोगों के लाइफ पे हम लोग इम्पैक्ट करते हैं, लाइक इनडायरेक्टली जॉब ये कर सकते हैं या सब चीज़ें। तो ये हमारा एम है। और अभी ऐसा है कि पर्सनल लाइफ में तो ये नॉर्मली इसी में पूरा चला जाता है। ये ही मेरा मतलब ये होता है, एंजॉयमेंट यही है। बहुत सारा नेटवर्किंग करना ये। Okay. I'll take the liberty of asking him a question, the language that he's closer to, Marathi, because we are also having this conference in Pune. So I'll take that liberty. दादासाहेब, माझं नाव तेजस. मला तुमच्यासाठी 2 क्वेश्चन आहेत. एक, when you started, जेव्हा तुम्ही ही जर्नी स्टार्ट केली, तेव्हा you had तुमची जी रिस्क होती ती फार कमी होती. सो मे बी ऑफिस बॉयनं स्टार्ट केलं, सो यू डिड नॉट हॅव लॉट ऑफ, म्हणजे खूप जास्त फायनान्स मॅनेज करण्याची जास्त रिस्क नव्हती. राईट. आता जर तुम्ही ह्या लेवलला पोहोचले आहेत, तर इथून पुढचं फायनान्स मॅनेजमेंट खूप महत्त्वाचं आहे. सो त्याच्यासाठी तुमची स्ट्रॅटेजी काय आहे? आणि दुसरा क्वेश्चन असा आहे की आता तुमचा बिझनेस स्केलेबिलिटीसाठी ॲप्लिकेबल आहे, तर जे शार्क टँक वगैरे मध्ये जातात, तर त्यांचा तुम्हाला मेंटरिंग कशी हेल्प करते? राईट. तर आता म्हणजे शार्क बाकीचे म्हणजे होतं की जास्त वेळ वगैरे देत नाही, पण कसं आहे की त्यांना जर तुम्ही व्हॅल्यू क्रिएट करून दिली तर ते व्हॅल्युअल बिझनेसला देतात आणि खूप नॉर्मल आहेत, म्हणजे बाकीचे ॲटिट्यूड वगैरे त्यांना काही नाही वगैरे. तर माझं बऱ्याच वेळेस अमनजीशी बोलणं वगैरे होतं आणि खूप चांगला रिस्पॉन्स आहे त्यांचा. आणि त्यावेळेस थोडी रिस्क कमी होती, पण आता मी सेम सांगितलं की मी डेडिकेटेड थिंग्स अपॉइंट करतो. तर एक इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग फर्म आहे, ती पण मी ऑलरेडी त्यांच्याशी क्लोज करतो की ते आमचे फंडिंग पुढचा आमचा एक मोठा राऊंड पण आम्ही रेज करतो आहे, सीड राऊंड रेज करतो आहे. तो अराऊंड 2 मिलियनच्या आसपास आहे. तर ते आम्हाला त्याच्यामध्ये सपोर्ट करतात. आणि CA आणि ह्या बाकीचे लिगल फर्म पण मला सपोर्ट करते, कारण का डिझाईन बिझनेस हा खूप IP क्रिएशन आणि या वेळेचा आहे. तो ते लिगल पण आमच्याकडे टीम आहे. तर हे पूर्ण टीमवर्क आहे. आता मी रिस्क, ती छोट्या लेवलची रिस्क नाही घेऊ शकत, आता कॅल्क्युलेशनवाले गेम आहे सगळं. आणि एक शेवटचा क्वेश्चन, तुम्ही आमचे लोकल अमन बनू शकता का? सॉरी, तुम्ही आमचे लोकल अमन बनू शकता का? यस, डेफिनेटली. माझ्याकडे तेवढा पैसा आला तर नक्कीच बनणार. गुड, थँक्यू सो मच.
हॅलो. तुम्ही तुमच्या शिक्षणाबद्दल म्हटलं की मी 10वी पास आहे आणि मग मी थोडं हैदराबादला गेलो वगैरे. तर मला हे जाणून घ्यायला आवडेल की त्या 10वी पासपासून ते ह्या जिथे तुम्ही आत्ता आला आहात तिथपर्यंत तुम्ही काय काय शिकलात आणि म्हणजे ते टेक्नॉलॉजी वाईज असू शकतं किंवा बिझनेस वाईज असू शकतं. तर तुम्ही काही स्पेशल कोर्सेस केले किंवा हाऊ यू हॅव अपडेटेड युअर सेल्फ. राईट. आत्तापर्यंत माझी लर्निंग अशी झाली की मला जो प्रॉब्लेम समोर येतोय तर तो मी शिकत गेलो. तर सुरुवातीला जसं मला जे डिझायनर बनायचं होतं, डिझायनर नंतर टेक्नॉलॉजी करायचं होतं, नंतर थोडं मार्केटिंग शिकायचं, नंतर बिझनेस शिकायचा होता. तर आत्ता सेम माझ्याकडे खूप सारे प्रॉब्लेम्स आहेत. मी एक गोष्ट शिकलो की मला हा जो प्रॉब्लेम आहे तो कसा सॉल्व करायचा आणि त्याच्यासाठी मला काय लर्निंग करायचं ते खूप कम्फर्टेबली मी शिकू शकतो. हा मला म्हणजे लाईफमध्ये कंटिन्यू अपग्रेडेशन चालू राहिलं असं हे शिकलो मी ॲक्च्युली. थँक्यू. जे पहिलं तुमचं ॲप होतं डू ग्राफिक्स, त्याच्याबद्दल आता तुमचे नेक्स्ट स्टेप्स काय आहेत किंवा तुम्ही त्याचा अँड्रॉइड वगैरे iOS ॲप असं तयार करायचं काही प्लॅन आहेत काय? येस. अगोदर ते ॲक्च्युली PHP मध्ये बनवल्यामुळं आम्ही त्याला स्टॉप केलेलं आहे आणि पुढच्या 6 महिन्यात आम्ही त्याला एक वेब बेस्ड ॲप्लिकेशन आणि अँड्रॉइड ॲप पण आमचं 6 महिन्यात येतं आहे ते. येस. ओके, थँक्यू. Any question? I'm going to lose some weight today. मेरे को आपसे ये पूछना था, आपने कंपनी का नाम कैसे रखा, उसकी स्टोरी क्या है? राइट. एक्चुअली इसमें सर्च वॉल्यूम जो होता है, अभी जो मुझे ग्राफिक्स का पहले प्लेटफॉर्म बनाना था तो ऐसा नेम रखना था कि जो सर्च हो जाए और उसका मुझे ये भी मिलना चाहिए, ब्रांड भी मिलना, मतलब क्या बोलते हैं, ब्रांड लोगो वो सब कुछ तो मिलना चाहिए. तो दोनों मैच करके उसको डोमेन भी मिलना चाहिए, सर्च भी अच्छा होना चाहिए, उसका सब कुछ कंबाइन करके फिर सोचा. तो बहुत सारे मतलब 50-100 की लिस्ट थी या 200-300 की, उसके साथ जो मिले उसको कंबाइन करके नाम बनाए. इसके बाद आगे जाके हम लोग इंटरनेशनली डूजी AI करके लेके जा रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनली लगे कि ब्रांड है. एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ. यहाँ पे मोस्टली जितने लोग हैं उनके बॉसेस हैं. तो प्रोफेशनल आपके सेटअप में कोई बॉस है और घर पे कोई बॉस है? हाँ, घर पे बॉस है लेकिन नॉर्मली ऑफिस में सभी बॉस है. ओके. क्वेश्चन इसलिए था बिकॉज वी ऑल लेट्स से टू डू अ छोटा सा कुछ करना है तो एक समटाइम दो वी दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन समटाइम वी हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ अप्रूवल प्रोसेस एंड डिस्कशंस वेयर जो छोटी चीज़ होती है वो ऐसे ही हो सकती है बिकॉज इफ़ यू हियरिंग हिज जर्नी बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट हुई है राइट. तो मैं वो रिलेट नहीं कर पाता हूँ. मैं सोचता हूँ यार मेरे को वो वाला प्रोडक्ट ऐसे करना है तो इतना सारा है. तो आपको अगर हमको कोई एडवाइस देनी है कि कुछ आपको फास्ट तरीके से डेवलप करना है तो आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, टीम्स के साथ आपने कैसे वर्कआउट करना है? एक्चुअली जॉब करना भी मतलब ये नहीं, उसमें भी बहुत सारा अपनी अपनी जर्नी है. लेकिन जॉब में भी ऐसा है कि एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे आई थिंक राहुल सर है यहाँ पे, उनको पता है कि एनिमेशन का कैसा चलता है. तो जब मैं एनिमेशन की टीवी सीरियल के एपिसोड करता था, मैं तो एपेक्स आर्टिस्ट. तो मुझे जो पानी वानी बनाना था उसमें वो था. तो मैं क्या करता, हर एक डिपार्टमेंट का मेरे पास फाइनल आता तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए काम करता कि ये यहाँ पे अटका है तो उसके साथ कैसे करके डिलीवर कैसे करना है. तो मैं यहाँ का एक एंटरप्रेन्योर उसी में सीख रहा था. तो जॉब करते वक्त हम लोग वो वाला एक्सपीरियंस लेते, तब जाके हम लोग छोटा प्रोडक्ट बना सकते हैं और सिंपली छोटे वे से स्टार्ट कर सकते हैं. वेरी वेल सेड. हो सकता है हम सब लोगों से, मैं डेवलपर हूँ तो मैं BA के पास चला जाऊँ, उसका थोड़ा काम कर ले, कर सकते हैं हम सब. ऑनेस्टली दे सकते हैं. यहाँ पे नो वन इज लुकिंग एट यू. ऐसे कर करके पूछे हमें. अच्छा, वेरी गुड. एनी क्वेश्चंस? या हाँ बाकी. हाय दादासाहेब, मराठीत एक म्हण आहे, अज्ञानात सुख आहे. आय मीन एक्सटेंडिंग टू दॅट, इथे बसलेले आहेत म्हणजे विथ नो ऑफेन्स ॲब्सल्युटली, ते तुमच्यापेक्षा थोडासा शिक्षणामध्ये जास्त आहे. तर तुम्हाला असं वाटतं की आपण एखादं जर शिकलो, समजा मी ग्रॅज्युएट आहे, तो पोस्ट ग्रॅज्युएट आहे, मग त्यामुळं काय होणार की मी हा काम मी करणार नाही. म्हणजे समजा आता आपण बघतो की अरे यार हा वडापाववाला आहे, हा किती कमवतो आणि मी IT मध्ये इतका कमवतोय पण मी टॅक्स भरतोय आणि हा आपलं सगळं. तर तुम्हाला काय वाटतं की
तुमचं जे शिक्षण कमी होतं ते इन अ वे तुमचं ॲडव्हान्टेज होतं का, की बाबा हां ठीक आहे मला हे शिकायचं आहे आणि हे मला माहीत नाही, हे मी शिकणार आणि मी यातून पुढं जाणार, आणि ते तुम्हाला त्यांनी ते पाठीमागं नाही घेतलं एक. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा आता तुम्ही यू स्टार्टेड फ्रॉम रिअली ग्राउंडवर, तर तुमच्या पर्सनल लाईफमध्ये तुम्हाला काय, म्हणजे आता जसं तुम्ही जाता तुम्हाला इथं इतके लोकांशी भेटणं, तर ते एक एक्सपिरियन्स तुम्ही शेअर, तुम्हाला कसं वाटतं हे तुमचं ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रॉम देअर टू आता तुम्ही जिथं आहात तिथं. थँक्यू. तर सुरुवातीला मी लोकांशी ते इंग्लिशमध्ये बोलले ना, तर मी बोलण्याला थोडं ही करायचो, नंतर कॉलेज वगैरे जास्त ही घाबरायचो. पण आता असं झालं की जे आमचे प्रोडक्ट मॅनेजर वगैरे आहेत किंवा असे काही ते IIT वाले पण माझ्याबरोबर काम ॲज अ टीम म्हणून आम्ही खूप चांगलं काम करतो. तर आता ते राहिलं नाही, पण सुरुवातीला मला होतं की ते इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे त्यांचे डिग्रीवाले वगैरे म्हणजे थोडं व्हायचं, पण आता काही नाही, नॉर्मल झालं ते. मराठीतून बोलतो, लँग्वेजवरच प्रश्न आहे. सो भारतामध्ये हे खूप आहे की इंग्लिश म्हणजे ज्ञान, आणि हे खूप जास्त आहे, आणि हे मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये आहे. पण आपण बघतो की जॅपनीज लोक, चायनीज लोक ह्यांना अजिबात इंग्लिश येत नाही. तर तुमचा एक्सपिरियन्स इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज सोडून कसा आहे, तिथले जे लोक आहेत ते कसं मॅनेज करता, तिकडनं काही लर्निंग होतं का? म्हणजे आय थिंक दॅट इज व्हेरी नेसेसरी. सॉरी पुन्हा इंग्लिशमध्ये येतोय, पण हे खूप गरजेचं आहे भारतामध्ये सगळ्यांना सांगणं. तर तो काही एक्सपिरियन्स असेल तर तो शेअर करू शकता. राईट. तर आमची त्यावेळेस 2018-19मध्ये मला त्यावेळेस इंग्लिश येत नव्हती. मी माझे कस्टमर जसे US काही होते ते पण बाहेरच्या कंट्रीत, त्यांना US पण मी बघितलं की त्यांना पण इंग्लिश येत नाही, बरेच बघितले त्यांना इंग्लिश येत नाही. त्याच्यानंतर एक चायनाचा क्लायंट आहे, ते आहेत वंडरशेअर म्हणून, तर त्यांना पण इंग्लिश येत नाही. तर आम्ही मध्ये एक मीडिएटर वगैरे ठेवतो, पण आमचा काय आता डिझाईन पोर्टफोलिओ खूप चांगला होता, म्हणजे प्रेझेन्स खूप चांगला होता, ते आम्हाला त्याच्यावरून रीच आउट करायचे. तर तो आम्ही सॉल्व्ह केला, म्हणजे त्याच्यात प्रॉब्लेम कधीच नाही आला. मग इंडियामध्येच हा प्रॉब्लेम आहे की आपण लँग्वेज बघतो, बाहेर ते काही नाही बघत, म्हणजे ओव्हरऑल सगळ्याच वर्ल्ड वाईड आम्ही काम करतो, पण अजून तरी काही प्रॉब्लेम नाही आला. आणि मी इंग्लिश त्यांच्याकडूनच शिकलो ॲक्च्युली, जे बाहेरचे कंट्री आहेत त्यांच्याबरोबर कम्युनिकेशन करून, कधी कॉल वगैरे करून किंवा असं सारखं, त्याच्यामधूनच मी इंग्लिश हळूहळू शिकलो. वेल सेट. ह्याच क्वेश्चनला मला सांगायचं असं, आत्ताच हाच क्वेश्चन मी उत्तर की माझे सुद्धा चायनाबरोबर खूप सध्या चांगले संबंध आहेत. स्पेशली माझी एक क्लायंट आहे, तर जेव्हा मी पहिल्यांदा चायनाला गेलो होतो 2018मध्ये, तर त्यांनी माझ्यासाठी एक ट्रान्सलेटर अरेंज केला होता आणि आम्ही ट्रान्सलेटर थ्रू गप्पा मारल्या. नंतर कळालं की जी लेडी आहे तिला इंग्लिश खूप छान येतं, फक्त लिहिता येतं, बोलता येत नाही. तिला समजतं सुद्धा पण तिला बोलता येत नाही. आज 7 वर्ष आले, ती माझी सगळ्यात मोठी कस्टमर आहे. मी तिथे गेल्यानंतर ती मला टुरिस्ट स्पॉटला घेऊन जाते, वेगवेगळ्या फॅक्टरीत घेऊन जाते, सगळं पैशाचं, म्हणजे शी इज रिप्रेझेंटिंग बांबू इंडिया इन चायना. पण कधीच प्रॉब्लेम नाही आला. जसं दादासाहेब परफेक्ट बोलले, हा ॲटिट्यूड इश्यू फक्त US आणि युरोपियन क्लायंटलाच आहे. बाकी तुम्ही कोणत्याही देशात जा जे नेटिव्हमध्ये बोलत आहेत, माझे जॅपनीजमध्ये पण आहेत, त्यांना ते खूप छान कोऑपरेट करतात. म्हणजे लँग्वेज बॅरियर हा फक्त इंडियामध्येच लोकांनी करून ठेवलेला आहे की इंग्लिश म्हणजे खूपच भारी. पण जेवढा दादासाहेबांनी हंबलनेस दाखवला तेवढा कोणत्याच इंटरप्रिन्युअरमध्ये असतो जो जास्त शिकलेला आहे. म्हणजे उलट आपण शिकल्यानंतर आपली बुद्धी भ्रष्ट होती हे आज मला कळालं. हॅलो. हा प्रश्न तुम्ही स्किप पण करू शकता आन्सर द्यायला, पण मी विचारतोय फक्त, ठीक आहे? कारण सगळ्यांनी तुमची जर्नी विचारली, हे विचारलं, पण ह्या सगळ्या याच्यात तुमची फॅमिली, म्हणजे तुमच्या फॅमिलीने कसं तुम्हाला सपोर्ट किंवा काय त्यांनी काय रोल प्ले केला की ज्याच्यामुळे तुम्ही आज म्हणजे याला आहात? राईट. आता एज्युकेशन वाईज ज्यावेळेस आमच्या घरातल्यांना घरातल्यांना माहीत नव्हतं की काय शिकायला पाहिजे, म्हणजे जे, त्यामुळं कधी त्यांनी मला अभ्यास कर म्हणून सांगितलं नाही. त्यावेळेस मी ड्रॉइंग वगैरे करायचो. आणि आत्ता ज्यावेळेस मी बिझनेस ज्यावेळेस स्टार्ट केला, ॲज अ फ्रीलान्सर वगैरे झालो, तर त्यावेळेस घरातल्यांना माहिती नव्हतं की मी काय करतोय. आपण ज्यावेळेस लॉकडाऊनमध्ये त्यांनी घरातले शेजारचे वगैरे सांगायचे की तुझा मुलगा आज TV वरती दिसतोय किंवा मोदीजींनी त्याच्यासाठी ट्विट वगैरे केलंय. मग त्यावेळेस त्यांना वाटतं हा आता काहीतरी करतोय हा, त्यावेळेस तोपर्यंत काही करत नव्हता. दादासाहेब एक प्रश्न माझ्याकडनं, सो आय विल मेक शुअर दॅट हिंदी अँड मराठी वुड मिक्स अप. सो बिकॉज दैट सीम्स टू बी फीडबैक विच वी एम सीइंग ऑन द फेस. ये क्वेश्चन ऐसा है कि हम लोगों ने ये पूछा सब लोग आपसे, और योगेश जी ने बताया कि लैंग्वेज थोड़ा
इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से, बाकी कंट्रीज़ में नहीं है। तो आपके पर्सपेक्टिव से क्या, व्हाट वाज दैट वन फैक्टर जो आपने मुझे बीच में मुझे समझ में आया कि वर्क टॉक्स मोर देन व्हाट योर लैंग्वेज शुड। तो ये हम इंडिया में अगर लाना चाहे कि हमारा काम ज़्यादा बात करे दैन द लैंग्वेज विच इज़ नीडेड टू स्पीक, हम ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप यहाँ देखोगे ना, हम लोग जब माइक लेते हैं या बात करना शुरू करते हैं इंग्लिश में शुरू करते हैं, वो डिफ़ॉल्ट मोड में चले जाते हैं। दैट्स हैज़ बीन अ डिफ़ॉल्ट मोड फॉर अस। तो हमें ये बदलना है, तो क्या कर सकते हैं हम? एक्चुअली इंग्लिश ज़रूरी भी, जैसे हम लोग भी अभी ग्लोबल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मेरे लिए अभी इंग्लिश ज़रूरी है। तो आई थिंक जो आप काम कर रहे हो तो आपके जो क्लाइंट्स है उनको भी आता है, तो ये कम्युनिकेशन लैंग्वेज वहाँ पे जरूरी है। लेकिन हम लोग जो यहाँ के ऑपरेशन छोटे छोटे चीज़ में वहाँ पे इंग्लिश नहीं लाना चाहिए, तो तब जाके आई थिंक वो चेंज होता है। लेकिन जहाँ हमें कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ पे ज़रूरी होना ही चाहिए। We have a couple of more minutes. Any questions? 10 minutes we have. I think. एवढा क्वेश्चन प्रश्न नाही आहे हा, पण संवाद कौशल्य हे भाषेच्या विपरीत है। संवाद करने की कला, उसके लिए आपको भाषा की लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। और मैं इनफैक्ट इसी एक फ्रंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल, जहाँ पर हम सबको संवाद और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाया जा सके इसके बारे में बताते हैं। थैंक यू। थैंक यू। Any thoughts, any questions? आई थिंक पूरा क्लियर हो गया अभी। अभी क्लियर हो गया तो थोड़ा रिवर्स करेंगे। रिवर्स ये करेंगे कि की टेक अवेज जनरली स्लाइड पे डाला जाता है या फिर होस्ट बोलेगा, तो अभी ना अपन रिवर्स करते की टेक अवेज हम सबसे लेते हैं कि क्या वन की टेक अवे आपके लिए है जो आप आपके मंडे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, हियरिंग हिम। और हर टेबल एक तो देगा ही, ईच टेबल हैज टू गिव वन। मैं भी एक चाहूंगा कि आप हमारे प्रोडक्ट में क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहोगे, तो जो आपसे भी मुझे वो मिल सकता है। एब्सोल्युटली। तो दादा साहब लिंक आप सबको दिया जाएगा, विल बी ओपन फॉर प्लेग्राउंड राइट फॉर देम। यस। एंड देन यू गाइस कैन गिव दैट। बट जो आज क्विक सेशन में इतना सारा हमें समझा है, और मेरे को पर्सनली समझ में आ रहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल जो कर रहा है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोग की टेक अवे ले जाओगे और आपके जॉब में इम्प्लीमेंट करोगे? बहुत अच्छी चीज़ ये बताई गई थी उनसे कि आप आपके जॉब में भी यू एक्ट एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट? तो सही से वर्क हुआ। यस। तो मेरा की टेक अवे यही है कि पैशन हो तो कुछ भी आप हासिल कर सकते हो, और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप में बस पैशन और जज्बात होना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर एवरी डिस्कशन दैट वी हैड, बाउंड्रीज हम खुद बनाते हैं। एंड यू आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल, जो कि यू आर रनिंग फ्री एंड वाइल्ड विदाउट बाउंड्रीज एंड अचीविंग विच वी कुडंट, एंड वी क्रिएट आवर ओन बाउंड्रीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल विच आई कैन ब्रिंग अप टू द टीम्स। सबको देना ही पड़ेगा। हाँ, I think vision is more important, and I think language and all this not that much important. If you have clear vision, then we can do that. Something. Just want to mention कि we should find out our skill, what is our master thing, what God gifted us. As Dada Sahib found that he is a great designer, so उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा अपने स्किल को फाइंड करने में. So we just need to figure out what is the key within us. So if we follow that and we follow our passion, then everyone can be an entrepreneur. That is the key takeaway. Well said. या हेलो, मैं एक चीज़ सीखा कि दादा साहब ने जैसे बताया था कि हम हमेशा प्लान नहीं कर सकते या क्या क्या करना है. जो प्रॉब्लम वो शॉर्ट टाइम फेस करते हैं उसको सॉल्व करते हैं वो नेक्स्ट इसको जा सकती है. तो हम लोग लॉन्ग टाइम हमेशा हम लोग कोई बिजनेस सोचते हैं तो बहुत सारा सोच लेते हैं, फिर सोच के हो जाता है कि हमसे नहीं होगा. बहुत सारा टाइम सोचने में चला जाता है, हम लोग प्रैक्टिकल करते नहीं है. तो छोटे छोटे अगर एग्जीक्यूशन करते तो बड़ा वाला भी सॉल्व हो जाता है. करेक्ट करेक्ट. बाप रे, इसके लिए हमारे पास 4 दिन का कोर्स है और सर्टिफिकेशन है ना? So we do that and pay hefty money for learning this, right? I don't want to name the certification, but you all are aware of that, right?
सो ये दोनों सेशन सुनने के बाद तो सही में लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ हम लोग कर सकते हैं। और एक तो हम लोग खुद के लिए एक सोच के कि कैसे ग्रोथ करेंगे, सेकंड सोसाइटी के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं। तो दो सोच के बाद कुछ तो हम लोग स्टार्ट कर सकते। तो यानी ये जो अभी तक हमने सोचा नहीं, तो एटलीस्ट मैं सेशन अटेंड करके सोच तो सकता हूँ कि हम लोग कुछ तो कर सकते हैं। वेरी गुड, थँक्यू. तुमचंच नाही, मी दोघांचे सेशन अटेंड केले. योगेश माझा मित्र आहे, पण आज फर्स्ट टाईम मी त्याला ऐकलं आणि तुम्हालाही फर्स्ट टाईम ऐकलं. मी एकच गोष्ट शिकलो, मी जसा आहे जो आहे तेवढंच खूप आहे. त्यातच मी बरंच काही अचीव करू शकतो. धन्यवाद दोघांचेही धन्यवाद. Well said, Prasad. And you were there? पहिल्यांदा तर खूप छान वाटलं ऐकून. मंडे पासून इम्प्लिमेंट करेल की नाही माहित नाही. पण एटलीस्ट सेशन तक तो ये नहीं होना चाहिए. नाही पण एक म्हणजे की टेक अवे जर का आपण म्हणलं तर what I realized that you always know what you don't know, and that is best thing. I think you have been planning it pretty well. That's really amazing. Thank you, Praful. So truly very inspiring, humble, grounded case study in our real life. Very enlightening. Thank you for that. My key takeaway on top of everything else we've heard is Three Idiots dialogue. काबिलियत पर ध्यान दो, कामयाबी जक मार के तुम्हारे पीछे आएगी. I think I see that epitome right before me. Wonderful, very inspirational journey. Thank you. Thank you. सगळंच कवर, सारा कवर हो गया है. तो अभी जो लिख के लिखा था उसमें से, बट वन थिंग इज इफ यू वांट टू डू इट, जस्ट डू इट, डोंट थिंक अबाउट इट. I mean, from both the sessions, like Yogesh session and the other side session as well. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा था, मतलब दोनों से. अगर हम में सारी क्वालिटीज़ नहीं है तो जैसे आपने बोला कि कुछ चीज़ें, योगेश सर ने बोला कि जैसे कुछ चीज़ें हम फॉर द टाइमिंग आउटसोर्स करके ले सकते हैं तो रिस्क कम हो जाता है. वंस इट इज़ नोन दैट कि थिंग्स आर वर्किंग, देन यू एक्चुअली पुट मोर मनी टू बिल्ड the things. That was good thing. And हम actually ये analysis paralysis करके एक term है जो कि just we think कि कैसे करना है and then कुछ नहीं हो पाता. तो उसमें अटकना नहीं है. मैंने भी देखा है कि जैसे मैं भी बहुत सारे मोटिवेशन देखता था कि ये वो चीज़ करके, तो उससे रिलेट नहीं कर पाते. लेकिन जब आप ऐसे मिलते हो, आप देखते हो अरे मेरे से इससे कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ, तब जाके एक्चुअल आता है हाँ ये प्रैक्टिकल हो सकता है. तो रील्स के साथ कुछ काम नहीं होता है. हाँ. रियल काम होता है. हाँ, मतलब आप ऑनलाइन देखोगे तो वो मेरे साथ ऐसा बहुत सारा हुआ है बहुत बार. मुझे एक्चुअली एक 3 Idiots का और एक स्ट्राइक हुआ जब आपसे अभी देखा ये सेशन, तो कि उसमें बोला है कि जो आपको पसंद है वो आप करो, उसमें आप एक्सेल करोगे. right. जो कि वो फोटोग्राफी कुछ तो कैरेक्टर था, अभी मुझे याद नहीं है, बट देन आपका जो ड्राइंग था उससे आपने मतलब कहाँ से कहाँ गए. बहुत बढ़िया. मंडे से सब लोग ड्राइंग करना शुरू कर देना. ओके. या एनीवन एल्स? लास्ट. Hello. 1 minute. So 5 minutes. Yeah, so my key takeaways like from the Yogesh Jay and the other side, like be pure and don't show up like they are like really humble and the ground power. बहुत बढ़िया. काफ़ी सारी चीज़ें तो कवर हो चुकी, बट हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, राइट. कई बार हम बोलते हैं बी प्रोएक्टिव, बट एक चीज़ आपके भी और इससे भी आपसे भी देखा कि हाउ कैन वी कैन बी सक्सेसफुल बाई रिएक्टिव एज, बिकॉज एक आगे जाके थोड़ा प्रोएक्टिव होना ही पड़ेगा आपको भी. यू आर डूइंग दैट, राइट. बट हाउ टू बी रिएक्टिव एट सम टाइम्स, उसमें भी आप सक्सेस ढूंढ सकते हो. सो दैट इज वेल सेड. थैंक यू. वन फ्रॉम माई साइड बाय द टाइम यू हैंड ओवर द माइक. सो मैंने ये समझा कि प्रॉब्लम्स तो सब जगह रहने वाले हैं. इनके यहाँ पे गांव में इंटरनेट नहीं था, तो गए वो पहाड़ के टॉप पे जहाँ पे काउ शेड था, एंड ही स्टार्टेड देयर. सो दैट्स समथिंग विच वी शुड ऑल थिंक ऑफ.
think from problem to solution, and that's the perspective which would probably I would take away and start working on from Monday. Basically, what the takeaway I think from here is have ownership in whatever you do. Be an entrepreneur or be a person who's doing a job. If you take ownership of what you do, you're going to be successful. So that's the takeaway actually from Dada Saheb. Thanks a lot. Okay, I think we have time up. Last, okay. मैं एक टेक अवे जो मैं पर्सनली लेना चाहता हूँ बहुत अभिजीत एंड दादा साहब से, लाइक दे टुक वेरी सिंपल प्रोडक्ट. जैसे अभिजीत ने टूथब्रश से शुरू किया और दादा साहब ने तो सीधे जायंट्स जैसे एडोब वगैरह को ही चैलेंज किया. तो दैट इज द स्पेक्ट्रम वी आर लुकिंग एट. वेरी सिंपल टूथब्रश जो हम रोज देखते हैं, और एडोब जो हमको डबल क्लिक किया चल रहा है, यार मैं कंपनी लाइसेंस ले रही है, व्हाई शुड आई पे फॉर इट. सो गेट इनटू द सिंपल थिंग्स, ट्राई कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो आज नहीं तो कल. और जैसे आई थिंक अगेन आई डोंट वांट टू सपोर्ट एनी पार्टी, बट जैसे ये मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत, ये सब इतने सारे स्कीम्स हमको अवेलेबल है. मे बी हमारे पिताजी उस टाइम पे नहीं थे, बट इफ वी स्टेप आउट देन मे बी आवर किड्स वुड से यार मेरे पापा ने कुछ तो करके रखा है, तो दैट विल बी फाइन. थैंक यू. एक्चुअली मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं सपोर्ट नहीं करी ये सब चीज़ें, तो 2020 में हमारा जो स्टार्टअप चालू हुआ था, तो मैंने स्टार्टअप इंडिया का एक चैलेंज था, वहाँ पे अप्लाई किया था. तो हमें 25 लाख का फंड भी मिला था जब हम गाँव में थे. तो कुछ भी ये नहीं था, लेकिन तो ये चीज़ें गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत करती है. लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि हमें वो चाहिए नहीं था, क्योंकि मुझे पता है किसी का पैसे लेते तो बहुत सारी जिम्मेदारी आती है, तो इसलिए हम लोगों ने लिए नहीं थे. तो लेकिन ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट ही है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अभी. वेरी गुड दादा. एक्चुअली हम लोग आई वुड लाइक टू से दिस थैंक्स टू योगेश एंड दादा साहब. आई वुड से दिस विद विहात सेइंग दैट इट वाज वी वर लकी to have them and they were so humble. We just connected, you know. इस स्टैचर पे होने पे कनेक्शन मिलना बहुत डिफिकल्ट. यहाँ पे मैं एक दो लोग जो बड़े प्रोफाइल में उनको कनेक्ट करता हूँ, 6 महीने रिस्पॉन्ड नहीं आता है. तो इस स्टैचर पे रह के रिस्पॉन्ड आना, एंड वेरी सिंपली वी सेड वी आर डूइंग अ वॉलंटियर बेस्ड कॉन्फ्रेंस, एंड उन्होंने बोला दोनों ने कि आप वॉलंटियर बेस कर रहे हो, वी वुड लाइक टू गिव बैक टू कम्युनिटी व्हाट वी लर्निंग साहब. सो बिग थैंक्स एंड आई वुड लाइक एवरीवन टू स्टैंड अप एंड हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट. और थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और इतना मंच देने के लिए, और मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिले. थैंक यू. Thank you. We'll call upon Tejas to felicitate Dada Saheb. Big round of applause, guys. Thank you. आज आप लोगों को रियल इंस्पिरेशन मिला है, रील वाला नहीं, इंस्टाग्राम वाला नहीं है. So thank you Dada Saheb, thank you Yogesh. Thank you. Thanks a lot. Thank you. I think I can ask you to grab a seat for a minute. We are going to have 2 more entrepreneurs coming tomorrow as well. So make use of these sessions to talk about it, understand, get inspired, और कुछ करो ताकि हम भी फिर आगे साथ में join कर सकें. And join us back, because आप जब करोगे, we would like you to come on stage and talk about your own journey as well. Absolutely. The way you have responded, that inspires Rahul and me to carry this show of Entrepreneur Katta going ahead. So thank you for a good response from all of you and very good questions from all of you. We are breaking for tea and coffee. जल्दी जाना, जल्दी नंबर लगेगा चाय पीने के लिए. Thank you. Thanks a lot. Thank you guys.